In my assessment and in the assessment of the society of Bengal, government has failed in its duties in assuaging the sentiments of the parents and the society. The Home Minister has failed in her responsibility to maintain law and order and ensure that there is rule of law in the state. The Health Minister miserably failed in containing the liquidation of the medical system in the state. It is an irony that the Health Minister happens to be the Home Minister. The Home Minister happens to be the Chief Minister. The Chief Minister is protesting instead of protecting. There is violence in the street. There is violence in the home. There is violence in the campus. There is violence in the hospital. There is violence in the villages. There is violence in the cities. Violence, violence everywhere. I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. Nor will I participate in any public program which involves the Chief Minister. Hello and welcome to a special interview for The Wire. Late last week, the governor of Bengal, C.V. Ananda Bose, issued a statement on video scathingly critical of the Chief Minister of Bengal as well as the government of Bengal. He said the government had failed in its duty. He said Mamata Banerjee was the Lady Macbeth of Bengal, and he added that hereafter he was going to boycott the Chief Minister. So today we ask, is it tolerable? Is it acceptable for the governor of Bengal to speak of his own chief minister in public, or has he outraged propriety and has he defied constitutional decency? That's the key issue I shall raise today with the former governor of Bihar, Jammu and Kashmir, Goa and Meghalaya, Satyapal Malik. जी. Mr. Malik, as I said in that introduction, जी. the governor of Bengal, in a video that he released late last week, has scathingly criticized the chief minister of his own state, both politically and personally. I'll come to details in a moment's time, but let me first ask you a simple general question. You've been a governor yourself. You were governor of 4 states. जी. Is it fit and proper for a governor to criticize his own chief minister in these scathing terms in public on video? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैं तो ये उम्मीद करता था कि दिल्ली की सरकार उनको इसी अपराध में हटा देगी। वो बहुत गलत काम किया उसने। मुझे ये बताइए सर, ये कितनी बड़ी गलती है आपके आंखों में? ये गैर मामूली गलती है, और ये ये ऐसी गलती है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की चीफ मिनिस्टर एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, चुनी गई चीफ मिनिस्टर है जिसको लोग पसंद करते हैं, और उसके लिए आप इस तरह की बात किस लिए बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये जो गवर्नर्स हैं ये बौखला गए हैं सब लोग, और इसलिए बौखला गए हैं कि एक आध गवर्नर की तरक्की हो गई है गलतियां करके, तो सोचते हैं कि जितना तुम बदतमीज़ी करोगे उतनी तुम्हारी आगे कोई तरक्की हो जाएगी। उसी चक्कर में ये लोग बोलते हैं। जिस गवर्नर की आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी तरक्की हुई थी गलत काम करने से, गलत काम बोलने से, ये क्या आप धनखड़ साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर आनंद बोस इज होपिंग कि अगर वो भी इसी तरह बोले तो उनकी भी तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो वरना कोई किसी समझदार आदमी को इस तरह बोलना ही नहीं चाहिए जैसे बोले आनंद बोस साहब। मुझे ये बताइएगा, इज दिस एन ऑफेंस फॉर व्हिच गवर्नर आनंद बोस शुड बी डिसमिस्ड? सर्टेनली, डिसमिस नहीं तो हटा तो दें, उनको अलग कर दें। अलग करने का क्या मतलब? अलग यानी और किसी काम पे भेज दें, इस काम के लायक नहीं है वो। तो मतलब गवर्नर के पद से इनको हटाया जाना चाहिए? फौरन हटाया जाना चाहिए, एकदम जी एकदम हटाया जाना चाहिए, क्योंकि चुने हुए चीफ मिनिस्टर के लिए इतना इंसल्टिंग टोन में बात करना और उसके बाद गवर्नर रहना उसी स्टेट में, उसी स्टेट को एक तरह से डिस्टेबलाइज करने के बराबर है। इनके बोलने के बाद लगभग 1 हफ्ता बीतने वाला है, 5 या 6 दिन तो कम से कम हो चुके हैं जी। शुड ही हैव बीन रिमूव्ड बाय नाउ? ऑफ कोर्स, वो अगले दिन ही हटाना चाहिए था, 24 घंटों के अंदर। बिल्कुल। और मैं तो तारीफ करता हूँ ममता जी की कि वो अब तक चुप हैं,
अगर वो बोलेंगी तो इनका बाहर निकलना बंद हो जाएगा बंगाल में। You mean she is so popular that if she were to speak against the governor, crowds would gherao Raj Bhavan? Certainly, वो she is very popular और she can make his life miserable. Let's at this point, Satyapal ji, come to details. जी पहली चीज, गवर्नर आनंद बोस ने कहा था द गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। उसके बाद उन्होंने अपने वीडियो में कहा द होम मिनिस्टर हैज फेल्ड इन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। The health minister miserably failed in containing the liquidation of the health system in the state. And then he says the health minister happens to be the home minister. The home minister happens to be the chief minister. और अंत में कहते हैं many things are rotten in the state of Bengal. क्या एक गवर्नर को अपने पॉपुलरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बारे इस तरह बातचीत करनी चाहिए, और वो भी पब्लिक में वीडियो पे? नहीं, इन्होंने कभी भी चीफ मिनिस्टर से जिक्र किया हो कि भाई ये गलत है, वो गलत है, ये मेरा असेसमेंट है आपकी सरकार के बारे में, वो तो किया नहीं है कभी। इन्होंने सिर्फ किसी को खुश करने के लिए बोल दिया है। शुरू में इनको अपने चीफ मिनिस्टर से कहना चाहिए अगर कोई शिकायत, वैसे मुझे लगता नहीं वहाँ शिकायत का कोई कारण है। शी इज़ रनिंग हर स्टेट वेरी वेल। आप कह रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए? ऑफ कोर्स, किसी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। किसको खुश करना चाहते जो हैं? दिल्ली में है, मतलब मोदी साहब? नेचुरली। He hasn't just spoken politically critically of the chief minister. जी पर्सनल टर्म्स में भी उन्होंने इनके खिलाफ कहा है। उन्होंने ये कहा, आई एम कोटिंग हिम, ही इज कॉल्ड हर द लेडी मैकबेथ ऑफ बंगाल। अब ये तो गाली है लेडी मैकबेथ कहना, और वो भी जैसी वो चीफ मिनिस्टर है, आपने देखा होगा नज़दीक से, चप्पल पहन के चल देती है, 100 रुपए की धोती पहन के, और पैदल निकल लेती है, और बेहतरीन सरकार चला रही है, और लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं। उस तरह की चीफ मिनिस्टर को लेडी मैकबेथ कहता है, वो बहुत पॉपुलर है बंगाल में। और ये बहुत गलत चीज़ थी। ये बहुत गलत है, इस तरह बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल, वो पता नहीं अब तक क्यों रिएक्ट नहीं किया, उसको तो इन पे मुकदमा करना चाहिए। सिर्फ लेडी मैकबेथ नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा ऑल द वाटर्स ऑफ द हुगली कैनॉट क्लेंस हर टेंटेड हैंड्स। मतलब हुगली दरा के सारा पानी इनका हाथ साफ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या कर दिया उसने? व्हाट डिड शी डू? कोई ऐसा गलत काम किया है, अपराध किया है, किसी का कत्ल कराया है, तो उसको, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन गए हैं, उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बंगाल की हालत के बारे भी बड़ी आलोचना की है। वो कहते हैं देयर इज वायलेंस इन द स्टेट, वायलेंस एट होम, वायलेंस ऑन कैंपस, वायलेंस इन हॉस्पिटल्स, वायलेंस इन विलेजेस, वायलेंस इन द सिटी, वायलेंस वायलेंस एवरीवेयर। दैट इज हिज एग्जैक्ट कोटेशन। आम आदमी को तो लगेगा जैसे गवर्नर साहब अपने ही स्टेट की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं वो, और उनको ये जानकारी नहीं है कि बंगाल पहले कैसा था, ममता के पहले बंगाल कैसा था। वो था वायलेंस वाला बंगाल, ममता ने तो बंगाल को संभाला है। तो मतलब ये इग्नोरेंस से बोल रहे हैं? इग्नोरेंस नहीं, वो डेलिबरेटली किसी को खुश करने के लिए गलत बात बोल रहे ये आप दूसरी बार कह रहे हैं। जी। Deliberately? मैं कन्विंस्ड हूँ ये सब लोग यही काम कर रहे हैं आजकल गवर्नर्स। मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ खुश करने के लिए ही बोल रहे हैं या किसी के कहने पे बोल रहे हैं? मतलब मेरा मोदी साहब के कहने पे बोल रहे हैं? कहने पे नहीं, किसी को खुश करने के लिए और अपनी फर्दर तरक्की के लिए। किसी को खुश करने के लिए और अपनी फर्दर तरक्की के लिए बोल रहे हैं। फाइनली जी गवर्नर आनंदा बोस ने ये कहा था अबाउट हिज फ्यूचर रिलेशनशिप विद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। वो कहते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं, आई विल सोशली बॉयकॉट द चीफ मिनिस्टर। I will not be sharing any public platform with the chief minister, nor will I participate in any public program which involves the chief minister. Can a governor say that he will boycott the chief minister? न कह सकते हैं, न कर सकते हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि इसके फंक्शंस बायकॉट करो, तो ये कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगे। वो तो शी इज़ ए डिसेंट लेडी, शी इज़ नॉट रिएक्टिंग टू हिज अटरेंसेज। अदरवाइज ने बहुत गलत कहा है। क्या क्या बायकॉट करेंगे चीफ मिनिस्टर का?
ना जाए, चीफ मिनिस्टर का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मुझे ये बताइएगा सर, many of the functions of a governor, many of the duties of a governor require that he is on the same platform as the chief minister. अगर वो खुला पब्लिकली कह रहे हैं कि मैं उनको बॉयकॉट नहीं करूंगा, जाऊंगा। मैं उनके साथ उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होऊंगा, मैं उनके साथ उसी प्रोग्राम पे नहीं हाजिर होऊंगा, then not only is he being rude, he's also saying he won't do his duty. ये क्यों करते हो? तुम इस्तीफा दे दो, कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुमको। अगर आप में गैरत है तो आप इस्तीफा दे दो कि मैं इसके साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ। जाए बिना तो काम नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत जगह आपको दोनों को साथ जाना पड़ेगा। ये जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया बॉयकॉट, इन इंडिया हिस्टोरिकली इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द वे upper caste treat lower caste and in particular treat Dalits. It's a phrase that is considered unacceptable. Lekin this is the phrase the governor has used for the chief minister. अब वो उनकी नासमझी है। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नर ही हैज गॉन बर्सर्क, उसको बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये चीज आपने 2-3 बार इस प्रोग्राम में कहा, लेकिन मैं आपको जानबूझकर फिर पूछ रहा हूँ। You are absolutely certain that the governor is speaking like this क्योंकि वो अपनी तरक्की चाहते हैं। एग्जैक्टली है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है लोगों का कि उन्होंने, धनखड़ साहब का और भी लोगों का हुआ है कि वो इस तरह की बेहूदगी करके ऊपर के लोगों को खुश करके अपनी तरक्की चाहते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि ही इज स्पीकिंग लाइक दिस क्योंकि वो किसी को खुश करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, 100%। और वो किसी साहब हैं, मोदी साहब या अमित शाह साहब? वही सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई, मोदी साहब जी। So the governor is actually trying to improve his position in the eyes of the prime minister by being downright rude about the chief minister. यस, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो मोदी जी के कब्जे की नहीं है। शी इज़ अ ब्रेव लेडी, शी इज़ फाइटिंग, शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज़ वेरी पॉपुलर। तो उसको गाली दे के, डिमीन करके वो यहाँ इन दिल्ली वालों की निगाह में अपने को बेहतर करना चाहते हैं। ये बात मैंने 2-3 बार इस इंटरव्यू में दोहराई है, बट लेट मी आस्क यू, बड़े ओपननेस के साथ, बड़े फोर्थराइटनेस के साथ आप जवाब दे रहे हैं। आर यू वरीड दैट गवर्नर आनंद बोस may take out legal action against you? I'm not worried. I'll be very happy if he takes me to court because वहाँ मुझे ज़्यादा बड़ा वो मिलेगा, एक तरह से कहिए क्या कहेंगे उसको, ज़्यादा बड़ी जगह बोले अपनी बात कहने के लिए मिलेगी। So you look forward to the opportunity Yes, of of saying course. what you're saying to me Yes, yes. in a court. Yes, I will. I'll love to say this in court. Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch the interview. Your viewership means an awful lot to me. The truth is, Satyapal ji, this is not the first time Governor Ananda Bose has criticized Mamata Banerjee. It's not the first time he's criticized the government of Bengal. In an interview to NDTV on the 16th of August, just 31 days ago, he publicly criticized both the chief minister and the government. He said, and I'm more or less quoting accurately, there is fear all over Bengal. मतलब कि बंगाल में सब लोग डरे हुए हैं, हर जगह वायलेंस है, और डेमोक्रेसी has become mobocracy. मतलब mobs have taken over the place of democracy.
मुझे लग रहा है जैसे कि ये गवर्नर साहब ने तो एक तरह की आदत बना दी अपने सरकार के खिलाफ बोलने की, अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलने की. इज दैट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एनी गवर्नर? नहीं, जो चीज़ें बोल रहे हैं वो कहाँ है बंगाल में. बंगाल एक पीसफुल स्टेट है एट द मोमेंट. कहीं कोई इस तरह की वायलेंस नहीं हो रही है. वो उनकी निगाह में हो रही है गवर्नर की, चूँकि उसको क्रिटिसाइज करना है चीफ मिनिस्टर को. लेकिन ये लगातार कहते जा रहे हैं. 31 दिन पहले भी इसी तरह बोले थे नहीं, वो एनडीटीवी के साथ. उनका एजेंडा है टू डिफेम चीफ मिनिस्टर. एजेंडा. यस. असलियत ये है सर कि सिर्फ बंगाल के गवर्नर अकेले नहीं बोल रहे इस तरह. काफ़ी गवर्नर हैं हमारे मुल्क में आजकल जो अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पब्लिकली बोलते हैं, जैसे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो. ये चीज़ हुई है तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पंजाब में, केरला में. एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स. ये गवर्नर का पद गिरा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि ये गवर्नर्स दिल्ली को खुश करने के लिए बोल रहे हैं. तो मुझे ये फिर बताइएगा, अगर एक गवर्नर नहीं, सिर्फ बंगाल के गवर्नर नहीं, लेकिन 4, 5, 6 गवर्नर जहां पे भी विपक्ष की सरकार हो, उस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उस सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं. सो इज दिस बीइंग डन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली? I hope it should not be, but maybe it is due to that. आपको इस चीज का शक है? शक है मुझे, क्योंकि ये एक बार नहीं हो रहा. सहारा तो दिया जा रहा है कहीं से. सहारा दिया जा रहा है. नहीं तो इनको रोका जाए कि भाई ये बदतमीजी मत करें आप. सहारा के अलावा इनको इनकरेज भी किया जा रहा है. एग्जैक्टली, वही मेरा मतलब है. सहारा से इनकरेज किया जा रहा है, सहारा दिया जा रहा है, जी. और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. नहीं हो रहा. एक्शन तो अभी तक हो जाना चाहिए था बोस के खिलाफ. Up till now, I have spoken to you about what Governor Ananda Bose in that video that he released late last week has said about the Chief Minister, both politically and personally about her. He also spent almost as much time attacking, not just criticizing, but attacking the former Commissioner of Police of Calcutta. The gentleman was removed by the Chief Minister last night, but this was said 5 days before the gentleman was removed. He accused him of actively conniving in erasing the evidence of the murder and rape in RG Kar Hospital. He accused him of gate crashing a function in Raj Bhavan, कि बिना बुलाए पहुंच गए थे मेरे घर पे. And finally he said, and मैं quote कर रहा हूँ, criminal action needs to be initiated against the Commissioner of Police. Now, आप governor रह चुके, you've spoken to commissioners of police in Kashmir, in Goa, in Meghalaya, in Bihar. Should a governor talk about a senior police officer who cannot reply, who cannot defend himself in public in this way? ये बात इनको चीफ मिनिस्टर से क्या, कोई शिकायत है अगर कमिश्नर से तो चीफ मिनिस्टर से चुपके से कहनी चाहिए. पब्लिकली उसको डिमीन नहीं करना चाहिए. लेकिन इन्होंने बिल्कुल वही चीज की है. हाँ, इनको तो he has gone out of proportion. ये कितनी बड़ी गलती है आपकी आंखों में? ये बहुत बड़ी गलती है. देखिए, सिविल सर्विस का आदमी है, चुन के कोई आपकी तरह अपॉइंट नहीं हुआ है, अपनी काबिलियत से चुन के आया है और उस ओहदे तक पहुंचा है, और उसको आप डिमीन करें, कोई अच्छी बात नहीं है. उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे ये कहा, ही इज, एंड आई एम कोटिंग, एक्टिवली कनाइविंग इन इरेसिंग द एविडेंस. मतलब मर्डर के एविडेंस को मिटाने की कोशिश जबरदस्ती कर रहे हैं. दिस कुड बी लाइबलस. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें तो जो कमिश्नर है उसको एक्शन लेना चाहिए. एक्शन लेना चाहिए. बिल्कुल लेना चाहिए. You're saying the commissioner should consider going to court for libel action? Of course, it should go. He should go. नहीं तो ये सही साबित हो जाएंगे कि सही कह रहे हैं. मतलब he's been put into a position where he has to and should go to court पक्का. to defend himself. पक्का. मुझे ये बताइएगा, by speaking in this way about the chief minister, about the government of Bengal, about the commissioner of police in Calcutta, has Governor Ananda Bose diminished the authority and stature of his office? Of course, and he thinks that he is above the law. He is above everything. He can do anything. He can insult anybody, whether that is chief minister or police commissioner, which is not good on his part.
तो अपने पद को इन्होंने नीचे गिरा दिया, गिराया, नीचे गिराया। जी। मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे थे कि 24 घंटों के अंदर गवर्नर साहब को हटाना था, दिल्ली की सरकार ने ये नहीं किया। दिल्ली की सरकार इसलिए नहीं कर रही कि दिल्ली की सरकार तो चाहती है उनके गवर्नर ये काम करें। So what message do you get when the Modi government refuses to remove a governor who has made such terrible blunders and mistakes, not once but repeatedly and in public? What message does that give to the rest of the country? What message does it give to governors? The message is loud and clear कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको बेइज्जत करो, उनको डिस्टेबलाइज करो और जो कर सकते हो वो करो ताकि उनकी इमेज खराब हो या वो चुनाव हार जाए अगला। Would you ever in your time as a governor have thought about speaking of a chief minister in this way? नेवर, कोई मौका ही नहीं आया। मेरा तो बहुत कोर्डियल रिलेशनशिप रहती थी सबसे। मेरा आखिरी सवाल, जी, आपकी आंखों में क्या ये सस्पिशन है कि गवर्नर आनंदा बोस इज लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूट? क्या ये कोशिश करते हैं? फाउंडेशन ले करने की जरूरत नहीं, उनको हिम्मत हो तो सीधे लिखना चाहिए, लेकिन ये तो लेइंग द फाउंडेशन ही नहीं है, ये तो जस्ट सरकार को बदनाम करने का अटेम्प्ट है। मैं जानबूझकर ये सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल आखिर में। जी, जी। A man with a sense of shame would not speak like this in public of his own chief minister. Do you get the feeling that this was shameless behavior on the part of the government? 100% shameless behavior, irresponsible behavior, erratic behavior. Shameless and irresponsible. Yes, yes. तीसरा क्या था? Erratic. Okay. Those are words with which, Satyapal ji, I will end this interview. Shameless and irresponsible. Irresponsible. Thank you very much indeed. Namaskar. Thank you. Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on The Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch The Interview. Your viewership means an awful lot to me.